Hello students, today I am going to discuss with you a new topic named admission of the partner. I'll be going to give you the introduction part today by taking 4 points. One is here why, when, how and effect. When there is a need of admission of a partner, why there is a need of the admission of partner, how can a new partner can be admitted into the business, how he can be entered into the business, who will be the incoming partner. So first questions comes in mind. If already two partners are there, this is the firm, already two partners are there who are known as the existing partners, or we call them as old partners also, Ram and Rahim. A new partner is there, Joseph. So he wants to join the business, or existing partners wants to take to him into the business. So first question comes in mind, why there is a need. So first question comes here. Sometimes the existing partner of a firm feel that a new partner should be inducted. When the existing partners, like here Ram and Rahim, wants to admit a new partner into the firm. This is okay. Now the next question comes, why they need it? Why they want to do an entry of a new partner into the business? Already they are running a business. Why they are required it? So questions comes कि they want to induct it, the new partner, for additional capital. They required additional capital. So additional capital is needed for the expansion of the business. They want to expand the business, but they do not have a much amount of the capital with them. So that's why they required a entry of a new partner. They want a admission of a new partner. Next, they need when there is need of competent person who is having a good managerial skill, who is experienced one, is needed for the efficient working or running of the business. Next important point, why it is needed? To increase the reputation and the goodwill of the business by taking a reputed or renowned person into the partnership firm. If a renowned person, a person who have a good name and fame in the market, if he will be going to associate with us, then the earning capacity of the business can be enhanced, बढ़ाया जा सकता है. ठीक है. So next important point, to encourage a capable employee by taking him into the partnership. These two persons are working in the partnership firm, Ram and Rahim. They want to encourage his employee who is working with them for a long period of time. They have seen he is very efficient, and we can take to him into the partnership firm as a partner. उसको हम अगर ज्वाइन करा ले तो हमारे पार्टनरशिप फर्म में जो वर्किंग के लिए वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैंड हो जाएगा इन दैट कंडीशन. So these are the questions. We have got an answer of it कि existing partners Ram and Rahim are there. Why they need it? Why? Question comes. Why they need it? So we have already discussed all these points. So this is very important for examination point of view. You should know that why and when we need it. ठीक है. Next question ये आया, when. ठीक है. Now we are moving towards the
how a new partner can be admitted? As we know that a new partner, when going to inducted into the business, or he'll be going to join the business, his entry will leads to मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन. मतलब जो हमारी पुरानी बिजनेस या पुरानी जो साझेदारी फर्म ये दो पार्टनर्स चला रहे थे, राम एंड रहीम, नाउ अब जोसेफ को अगर वो लेके आएंगे तो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा. क्या फर्क पड़ेगा? अर्लियर दे वर एसोसिएटेड, दिस टू पीपल और टू पर्सन्स वर एसोसिएटेड एज अ पार्टनर. दे हैव एग्रीड कि हम बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे और उसके भी जो शेयर्स एंड प्रॉफिट जो आएंगे दैट वी आर गोइंग टू शेयर इट अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशियो, और जो भी इन्होंने एग्रीड किया होगा. तो एग्रीमेंट बनाई होगी, दे हैव मेड अ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड बनी होगी, तो वो इन दोनों के बीच में थी. अगर अब नया पार्टनर एंट्री लेगा, एज यू नो न्यू पार्टनर एंट्री लेगा और न्यू पार्टनर को ये ज्वाइन कराएंगे बिजनेस में, तो व्हाट विल बी गोइंग टू हैपन? तो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है जोसेफ, तो कैसे ही एडमिट होगा? और पहली बात. दूसरा, क्या फर्क लाएगा अगर ये एडमिट होगा, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? तो सबसे पहली बात कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंट्री होगी पार्टनर की, ये पुरानी एग्रीमेंट को इफेक्ट करेगा तुरंत, और जो नई एग्रीमेंट है आपस में तीनों के बीच में, राम, रहीम एंड जोसेफ, थ्री पार्टनर्स, वो एग्जिस्टेंस में आएगी फिर. तो दैट विल लीड टू अ मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इट इज अ इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक. और इट विल बी गोइंग टू इफेक्ट में भी हम इस चीज को ध्यान रखेंगे. नाउ हाउ कैन अ न्यू पार्टनर एडमिटेड? अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नए पार्टनर को लाया कैसे जाए. क्या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं इन्होंने पहले से इसके लिए डिसाइड किया हुआ है, या अर्लियर दे हैव मेड अ पार्टनरशिप डीड, जो भी इन्होंने एग्रीमेंट की उसमें न्यू पार्टनर के लिए इन्होंने एडमिशन के लिए इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे हैव गिवन इन टू इट, वो ऑलरेडी रिटन फॉर्म में है कि हाउ व्हाट विल बी द मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन और हाउ अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड और कैसे एडमिट होगा, ऑल द थिंग्स, वो सारी चीज़ें उसमें मैंशनड है. तो अच्छी बात है, देन इट इज ओके. सो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप रूल, हाउ कैन बी एडमिटेड? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 clause 1 Indian Partnership Act 1932 says that this is very one important. How can be a new partner admitted? 1 marks question can be asked to you. How can be a new partner admitted? So according to the section 31 clause 1 in Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as a new partner. A person can be admitted as a new partner. Number 1, if it is so agreed, in the partnership deed. अगर पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी एग्रीड है, दीज टू पार्टनर्स हैव ऑलरेडी एग्रीड ऑन इट कि कैसे नया पार्टनर एडमिट होगा, और मेंशन है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको. जो आपने पहले से ही डिसाइडेड किया हुआ है कि क्या हम फॉलो अप करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे. बट इफ द एब्सेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द एब्सेंस ऑफ द अबव, अगर ये पहले से एग्रीड नहीं तो क्या करेंगे? तो सेक्शन 31 क्लॉज 1 सेज दैट इंडियन पार्टनरशिप इन 1932, a person can be admitted only, I have already highlighted here, only with the consent of all the existing partner. This is very important point, 1 marks important question. Only with the consent of existing partner. Who are the existing partner? Ram and Rahim. They want to take into the business Joseph को एंट्री लेना चाह रहे हैं, जोसेफ को एडमिट करना चाह रहे हैं इनटू द बिजनेस. तो क्लॉज है, अगर पहले से एग्रीड नहीं है तो एज पर दैट सेक्शन 31 क्लॉज 1, he can be admitted only, Joseph can be admitted only with the consent of existing partners. Existing partners are here Ram and Rahim, and Joseph is the new partner. Then he can admit into the business.
और फर्म में एडमिट करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स. तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हाउ कैन अ न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू द बिजनेस. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत टाइम गलत करते हैं और सीबीएसई का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आपने लिखना है सबसे पहले, यू हैव टू मेंशन सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, सेक्शन 31 क्लॉज 1. ठीक है, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. मतलब सारे पार्टनर्स एग्री करें. अगर राम और रहीम है, राम एग्री कर रहे हैं और रहीम मना कर दे रहा है, तो जोसेफ एडमिट नहीं हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में. वाई? क्वेश्चन अराइजेस, क्यों सर? तो क्वेश्चन इज हियर कि आपने फंडामेंटल्स में राइट्स पढ़े थे. तो जो रहीम हैव अ राइट और राम हैव अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. तो दे हैव अ राइट, अधिकार है उनके पास. सो दे कैन डिसअलाउ. और इफ म्यूचुअली बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू एग्री विद दैट, दोनों लोग का कंसेंट है, देन न्यू पार्टनर कैन बी इजिली एडमिटेड इनटू द बिजनेस. ठीक. आफ्टर दैट, हाउ वी हैव कंप्लीटेड, when we have completed, why we have completed. Now comes to the effect. If the new partners joins, then what will be the effect? उसको एंट्री मिल गई बिजनेस में, तो ये फर्क डालेगा. क्या फर्क आएगा? पहला फर्स्ट इफेक्ट आएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. रिकंस्टिट्यूशन मीन्स जो रनिंग बिजनेस चल रहा था, कौन चला रहे थे? ये एग्जिस्टिंग पार्टनर राम और रहीम. ठीक है, डायग्रामेटिकली आई मेंशन राम और रहीम जो चला रहे थे इसको. नाउ रिकंस्टिट्यूशन मीन्स कि रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा से पुनर्गठन ऑफ जो है साझेदारी फर्म की पुनर्गठन. मीन्स जो पहले से फर्म चल रही है उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा फिर से. इट मीन्स कि जो ओल्ड एग्रीमेंट है बिटवीन दीज टू पार्टनर्स, जो उन्होंने ओल्ड एग्रीमेंट है वो एंड्स हो जाएगी. ओल्ड एग्रीमेंट विल कम्स टू एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट अमंग all the partners come into the force or come into the existence also, you can write it. ठीक है, तो न्यू एग्रीमेंट आएगी और पुरानी वाली एग्रीमेंट क्या होगी? एंड हो जाएगी. वाई? क्योंकि अब राम, रहीम और जोसेफ ये तीनों मिलके जो साझेदारी कर रहे हैं, तीनों मिलके जो एग्रीमेंट करेंगे, जो टर्म्स बनाएंगे, वो रिटन फॉर्म में जो टर्म्स बनाएंगे वो अब यहां पे एप्लीकेबल होगा. तो इट विल लीड टू द मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पे व्हाट हैपन, न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड. अब यहां पे नई पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर हो रही है यहां पे. ठीक है, न्यू पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर होगी एंड इट विल बी एग्रीमेंट बिटवीन जो टर्म्स और जो भी कंडीशंस हैं आपस में इन्होंने डिसाइड किए. अब फ्यूचर में वो एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए चलना है ये तीनों, क्योंकि अब ये तीनों पार्टनर्स हैं. ठीक. सो जो बिजनेस है या फर्म है, इट विल कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यू होगा, पुरानी एग्रीमेंट एंड होगी और नई एग्रीमेंट बनेगी और बिजनेस जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, इट विल कंटिन्यू. सो न्यू पार्टनरशिप इज प्रिपेयर्ड, जिसमें की कंडीशंस आएंगी कि व्हाट विल बी द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर, what will be the share of profit of the partner, and other conditions are agreed upon, और other conditions agreed की जाएंगी कि what we have to do. Clear? Next important point, तो जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसको कुछ राइट्स भी मिलेंगे. he'll be going to get a right. तो two main rights the new partner या incoming partner gets. ठीक है, number one, right to share future profits of the firm. This is a very important. Right to share future profits of the firm. ठीक. अब जो बिजनेस फर्म है उसके जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स आएंगे उसको वो शेयर करेगा. अब क्वेश्चन अराइज, he'll be going to get a right to share the profits. Fine. Number one. So who will be going to give it? कौन देगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से राम और रहीम. इंडिविजुअली राम कैन सेक्रीफाइस और सरेंडर्ड इन फेवर ऑफ whom? जोसेफ, इन फेवर ऑफ जोसेफ. और रहीम विल गोइंग टू सरेंडर और सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ जोसेफ. और बोथ ऑफ देम, राम एंड रहीम,
in an agreed ratio they will be going to sacrifice or surrender in favor of whom? The new partner. So when they are going to sacrifice their share in near future, ठीक है, तो वो sacrifice कर रहे हैं, तो what is the benefit they have for that? अच्छा खासा वो अर्न कर रहे हैं, और अगर वो अपने हिस्से का पार्ट या हिस्सा जो भी वो किसको देंगे? न्यू पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे, जोसेफ को, राम और रहीम, तो व्हाट बेनिफिट दे विल बी गोइंग टू गेट? उन्होंने इतना एफर्ट्स किया, पास्ट से अभी तक उन्होंने इतने एफर्ट्स किया कि बिजनेस एक मुकाम पे है, फर्म एक मुकाम पे है, दे आर अर्निंग, दे आर एंजॉइंग द प्रॉफिट्स, और एक पर्सन आएगा और वो हिस्सा ले लेगा क्योंकि इन्होंने एग्री किया है कि दे आर गोइंग टू एडमिट द न्यू पार्टनर इनटू द बिजनेस. तो इफ दे आर गोइंग टू sacrifice in favor of these new partner, then it is the duty or it is the right of the existing partners to get the share compensated. भाई compensate करेंगे. In other words, in layman language I can say कि ये दोनों पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर नए पार्टनर को अपना हिस्सा बेच रहा है, तो नया पार्टनर खरीद रहे, सिंपल. पुराने पार्टनर्स बेच रहे हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट और नया पार्टनर क्या कर रहा है? खरीद रहा है. नाउ तो जब नया पार्टनर खरीदेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसके बदले ही हैज टू पे इट, उसको पेमेंट करना चाहिए, वो पेमेंट करेगा. तो व्हाट विल बी द अमाउंट? तो फॉर द पेमेंट टू कंपनसेट, तो वो कंपनसेट करेगा. टू कंपनसेट कीवर्ड, सो ही विल बी गोइंग टू कंपनसेट, जोसेफ विल कंपनसेट in sacrifice partners by bringing the amount of premium, or we called it goodwill. प्रीमियम जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट की वैल्यू बन रही है आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, तो जो वैल्यू बन रही है वो ये लेके आएगा और वो कंपनसेट करेगा टू हुम? टू द sacrificing partner, not existing partner. Only one important point you have to keep in your mind: to whom he will be going to compensate? Sacrificing partner. So Joseph will be a gaining partner, he is a gainer, and existing partners are a sacrificers. So they have sacrificed their shares, any of them or both of them, as the situation will be there or as the case. So Joseph will be going to compensate to the sacrificing partner. ठीक है, in other words we can say old partners also, but who have sacrificed. He is the gainer. So Joseph is the benefit receiver of share of profit, and these persons, that is Ram and Rahim, are the benefit giver. तो जो गिवर है उसको कंपनसेट करेगा कौन? जो बेनिफिट रिसीवर वाला पार्टनर है. ठीक, तो यहां पे एप्लीकेबिलिटी विद डेबिट द गेनर पार्टनर एंड क्रेडिट द सेक्रीफाइस पार्टनर. जिसने गेन किया उसके कैपिटल से उसके अकाउंट से आपको एडजस्ट करना है. जो भी प्रीमियम अमाउंट वो लेके आ रहा है, वो प्रीमियम अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में उसको आपने ट्रांसफर करना है. ठीक है, आपने कैपिटल मेथड ऑलरेडी फंडामेंटल्स में पढ़े अकॉर्डिंगली. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स. सेकेंड राइट, मेन इंपॉर्टेंट राइट, right to share in assets of the firm. Right to share in assets of the firm. अब नेक्स्ट उसको राइट जो मिल रहा है, ये राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म. जो रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस हैं या फर्म है उसके ऊपर उसका अधिकार है, बिकॉज इट इज द राइट ऑफ हिज. लेकिन वो राइट इसको मिलेगा कैसे? ये भी पार्टनर्स ने डिसाइड किया होगा. यहाँ पे हमने जो पार्टनरशिप डीड बनी होगी तो दे हैव डिसाइडेड कि दैट बाय प्रोपोर्शनेट कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो भी उसका प्रोपोर्शनेट शेयर बन रहा है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा फर्म पे. ही विल बी गोइंग टू कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंगली इफ द पार्टनर्स हैव एग्रीड ऑन इट, जब उन्होंने एग्रीड किया होगा. ठीक, ये आपको ध्यान रखना है. वन इंपॉर्टेंट नोट हियर कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि पार्टनर जो नया आ रहा है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करे ही करे. वो डिपेंड करता है इन पर्सन्स के ऊपर, राम और रहीम, वेदर दे want to have a contribution or not. तो यहां पे ये जो कंडीशंस एप्लीकेबल हो गई हैं,
इन पे हमें ध्यान में रखना है। इन वाई और व्हेन नीडेड, ये जो हमने अभी यहाँ पे बात की थी, इनको भी दिमाग में ध्यान में रखते हुए चलना है। कीप इन योर माइंड, ओके, कि इनकी वजह से भी वो उनको एग्जम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, इट क्लियर। बट इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, जो उन्होंने नई डीड बनाई कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सो इन दैट केस ही हैज टू कंट्रीब्यूट हिज प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द कैपिटल। जितना उसका हिस्सा बन रहा है, प्रोपोर्शनेट मीन्स कि जितना उसका हिस्सा बनेगा वो उतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, when he is going to get the right in the share, right of share in the assets of the firm, so I have mentioned a note here. New partner becomes liable, very important point. New partners become liable for, is become liable for any liability and loss of the firm after admission, not before admission, after admission. तो आफ्टर एडमिशन इफ फर्म हैव एनी लायबिलिटी और लॉस इंकर्ड, ठीक है, आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो ही इज लाइबल, ही बिकम अ लाइबल टू बेयर इट। ठीक है, उसको भी लायबिलिटीज को मीट आउट करना पड़ेगा और लॉस को बेयर करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, पार्टनर, जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, शेल नॉट बी लाइबल फॉर द पास्ट एक्ट्स ऑफ द फर्म। हाँ, एडमिशन होने के बाद अगर फर्म की लाइबिलिटीज हैं जो कि ये भी लाइबल है, ही हैज टू मीट आउट, और लॉस है वो भी इसको साझे करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ अगर उसके प्रायर टू द एडमिशन ऑफ द पार्टनर अगर फर्म की जो कोई लाइबिलिटी है और फर्म की कोई लॉसेस है, तो ही इज नॉट लाइबल फॉर द पास्ट एक्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जो जिस डेट से उसने एडमिशन लिया है उस डेट से ही इज लाइबल। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या था, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ही विल बी मेड रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। नेक्स्ट इफेक्ट, एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लाइबिलिटीज आर रीएसेट्स। जो एसेट्स हैं उनकी जो चेंज इन पोजीशन आ रही है और जो लाइबिलिटीज की जो एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें क्या चेंज आया है, बढ़ा है, घटा है, व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस क्या है उस डेट पे, वो हमने नहीं रिकॉर्ड किया अभी तक। ठीक है, उसको भी हमें रीवैल्यूड एंड रीअसेस करना पड़ेगा। ठीक है, विल बी गोइंग टू डिस्कस इट ऑन अ लेटर ऑन। तो रीअसेस इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि इसके वजह से जो चेंजेस आए हैं या जो प्रॉफिट या लॉस जो इफेक्ट आ रहा है, वो जो नया पार्टनर है ना प्रॉफिट होगा तो वो एंजॉय ना करे, और जो अगर लॉस है तो उसको बेयर ना करना पड़े। ठीक, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, अगर